ایک رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ صاف آسمان میں پورنیما کا چاند بے حد روشن ہو کر مسکرا رہا ہے اور اس کی مسکراہٹ سے پوری کائنات نورانی ہو رہی ہے۔ اچانک آسمان سے وہ چاند دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترنے لگا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے میں آ کر ٹھہر گیا۔ چاند کی پاکیزہ روشنی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا جسم جیسے نور سے بھر گیا۔ انہوں نے اس چاند کو اپنے سینے سے لگایا اور بے حد سکون محسوس کیا۔ پھر اچانک ان کی نیند ٹوٹ گئی۔ ایسا غیر معمولی خواب دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے مطلب کے بارے میں بہت سوچنے لگی۔ حالانکہ خواب کی تعبیر وہ سمجھ نہیں پائیں، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ضرور کوئی بہت اہم خواب ہے، کوئی بیکار کا خواب نہیں ہے۔ چنانچہ اگلی صبح وہ اپنے منہ بولے بھائی وراقہ ابن نوفل، جو اس زمانے کے ایک عالم اور دیندار شخص تھے، ان کے پاس پہنچی اور انہیں پورا خواب سنایا۔ جب انہوں نے اس کی تعبیر جاننا چاہی تو وراقہ ابن نوفل نے وہ خواب سن کر کہا، بہن تم بے حد خوش نصیب معلوم ہوتی ہو، کیونکہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ تورات اور انجیل کی کتابوں کو پڑھ کر مجھے جو علم حاصل ہوا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا ہے۔ آج تمہارا یہ خواب سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرنے والی ہو، اور تمام مردوں اور عورتوں میں سے تم سب سے پہلے انہیں پیغمبر مان کر ان پر ایمان لا کر ان کے دین کو قبول کرو گی۔ اپنے منہ بولے بھائی سے اپنے خواب کی ایسی تعبیر سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی خوشی گھر لوٹ گئیں۔ اس دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک پاکیزہ امید ابھرنے لگی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی عمر ہو چکی تھی اور اس کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب پر تھی، لیکن مالی تنگی کی وجہ سے وہ یہ انتظام نہیں کر پا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو کام کرتے تھے اس سے آمدنی بہت کم تھی، اس لیے ان کے لیے بھی شادی کے خرچے کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ ابو طالب ایک ذمہ دار ولی کی حیثیت سے اس بارے میں بے حد پریشان اور فکر مند تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھتیجے کو پاس بٹھا کر اس مسئلے پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں کہ مالی تنگی کی وجہ سے میں اب تک تمہاری شادی کا انتظام نہیں کر پایا، حالانکہ میں تمہاری شادی کرانے کا بہت خواہش رکھتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ ہمارے دوست خویلد کی بیٹی خدیجہ کا بڑا کاروبار ہے، ان کے اس کاروبار میں شاید کسی قابل، ایماندار اور تجربے کار شخص کی ضرورت ہو۔ اگر تم اس عہدے پر کام کر سکو تو اس کے بدلے تمہیں اچھی آمدنی ہو سکتی ہے، پھر اس میں سے کچھ بچا کر تمہاری شادی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا تم سے سوال یہ ہے کہ کیا تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں کام کرنے کے لیے راضی ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ بات سن کر فرمایا، چچا جان، آپ میرے ولی ہیں اور میرے سچے خیر خواہ ہیں، اس لیے آپ کی ہر رائے سے میں اتفاق رکھوں گا، اس بارے میں آپ یقین رکھیں۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلمندی اور قابلیت کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے ایک دن آپ کے پاس اپنے لوگوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر ان لوگوں کو خبر بھجوا دی کہ آپ اس کے لیے راضی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کافی رقم اور تجارتی مال دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے سلسلے میں شام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور خدمت کے لیے انہوں نے میسرہ نام کے ایک قابل اور ماہر غلام کو اور خجیمہ نام کے ایک کام میں ماہر رشتہ دار کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں ان کی خدمت کرنا، ان کے حکم اور مشورے کو ماننا اور ہمیشہ ان کی آسانی اور تکلیف کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر میسرہ اور خجیمہ کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں شامل ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وقت پر شام کے بصرہ شہر میں جا پہنچے۔ وہاں ایک بڑے برگد کے پیڑ کے نیچے اپنا خیمہ لگایا۔ یہ پیڑ کئی سالوں سے پتوں، پھولوں اور پھلوں سے خالی تقریباً سوکھی حالت میں کھڑا تھا۔ جب قافلے کے لوگ اس پیڑ کے نیچے خیمہ لگا رہے تھے تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
उस पेड़ की एक जड़ पर बैठकर आराम फरमाने लगे। लेकिन जैसे ही आप उस पेड़ की जड़ पर बैठे, वो सूखा पेड़ एकदम से जिंदा हो उठा और कुछ ही देर में उस पेड़ पर हरे भरे पत्ते और फूल निकल आए और वो एक मुकम्मल तरोताजा पेड़ बन गया। पास के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उस पेड़ से कुछ फासले पर बहीरा नाम का एक ईसाई पादरी रहता था। ये खबर सुनकर वो तेजी से दौड़ता हुआ आया और देखा कि वाकई लंबे अरसे से सूखा पड़ा वो पेड़ तरोताजा हो गया है और उस पर पत्ते, फूल और फल निकल आए हैं। पादरी हैरान होकर उस काफिले के हर एक शख्स का तारुफ पूछने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि इस काफिले के लोगों में जरूर कोई महान शख्सियत मौजूद है। इस पोशीदा मकसद को दिल में रखते हुए उन्होंने सबसे बातचीत की और आखिरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास तौर पर गुफ्तगू करके समझ गए कि करीब मुस्तकबिल में ये नौजवान आखिरी ज़माने के नबी होंगे, क्योंकि ईसाई पादरी को पहली आसमानी किताबों और इंजील का खास इल्म था। इसलिए वो ये सब कुछ समझ गए। उन्होंने इंजील में आखिरी पैगंबर की जो शक्ल सूरत और सिफात पढ़ी थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत और सिफात से उनकी हूबहू मिलान देखकर समझ गए कि उनका गुमान बिल्कुल सही है। पादरी ने काफ़ी देर तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आपके गहरे इल्म से वाकिफ़ होकर बेहद खुश हुए। फिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मैसरा को चुपके से बुलाया और कहा, तुम्हारे साथ यह जो महान शख्स हैं, आने वाले दौर में ये शख्स आखिरी पैगंबर होंगे। इस मुल्क के ईसाई और यहूदी अगर इनकी पहचान कर लें तो इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से उनके तमाम मजहब बातिल हो जाएंगे और आपका दीन पूरी दुनिया में फैल जाएगा और राइज हो जाएगा। इसलिए तुम देर न करो और जल्द से जल्द वापस अपने मुल्क लौट जाओ। पादरी बहीरा की नसीहत के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा शहर में दोगुने मुनाफे के साथ अपना सारा माल बेचकर वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी के रास्ते में मैसरा और खुजैमा ने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंट पर सवार होकर सफ़र फरमा रहे हैं, ठीक उनके ऊपर एक बादल का टुकड़ा साया किए हुए उनके साथ साथ चल रहा है। मैसरा और खुजैमा घर पहुंचकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उस पेड़ के वाक़िए, पादरी बहीरा की पेशगोई और रास्ते में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बादल के साए की बात सब कुछ तफसील से बयान की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन हैरत अंगेज वाक़ियात को सुनकर समझ लिया कि ये नौजवान वाकई आखिरी पैगंबर होंगे। वक्त पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तिजारत का पूरा हिसाब किताब समझा दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि दी गई रकम का तकरीबन 2 गुना मुनाफा हुआ है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब से तिजारत शुरू की थी, कभी इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ था। इससे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी खुश हुई कि उन्होंने आपको तय मेहनताना के अलावा काफ़ी रकम इनाम के तौर पर भी दे दी। हज़रत वराका इब्न नौफिल से अपने उस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद से ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक ख़ास कशिश और रुझान पैदा हो गया था। हालांकि उन्होंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इस बार जब उन्होंने आपको देखा, आपकी बातें सुनी और आपके अखलाक और आदाब को देखा, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ये पुख्ता यकीन हो गया कि मक्का शहर में अगर किसी में आखिरी पैगंबर बनने की सलाहियत है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं हो सकता। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद बेहद समझदार, अक्लमंद और दूर अंदेश खातून थीं। इसलिए उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी, इनकसारी और आपकी शख्सियत, नेक किरदार और इंसाफ पसंदी देखकर उनकी तरफ और ज्यादा मुतवज्जे हो गईं, जैसे उनका दिल आपकी तरफ खींचता चला गया। इस वक्त वो सोच रही थीं कि अगर ये शख्स आखिरी पैगंबर हैं और मैं इन्हें अपने शौहर के तौर पर कबूल करके इनकी खादिमा और बीवी बन सकूं, तो मेरे जैसी खुशनसीब औरत न अरब में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। इधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दयानतदारी और सच्चाई के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तिजारती कामों में मदद करते रहे। आपके हर काम से तमाम अच्छी सिफात, बेहतरीन किरदार
सच्चाई, दयानतदारी और बेहतरीन काबिलियत का सबूत मिलता रहा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इन तमाम खूबियों को देखकर दिन ब दिन आपकी तरफ और ज्यादा माइल होती गईं। यहाँ तक कि उन्होंने जो कसम खाई थी कि अब दोबारा शादी नहीं करेंगी वो भूल गईं और शादी के जरिए नए सिरे से गृहस्थी बसाने का हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पुख्ता इरादा कर लिया। नफीसा नाम की हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की करीबी और अक्लमंद सहेली थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन उनके सामने अपने दिल की बात रखी। उनकी बात सुनकर नफीसा ने कहा, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं, मैं इस सब का इंतजाम कर देती हूँ। फिर एक दिन नफीसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और पहले तिजारत के बारे में गुफ्तगू की। फिर बातों बातों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। नफीसा ने कहा, आपकी उम्र तो काफी हो गई है, अब तो शादी की उम्र है, फिर आप शादी क्यों नहीं कर रहे। नफीसा की बात सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तो मेरी माली हालत से वाकिफ हैं, आपको नए सिरे से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये जवाब सुनकर नफीसा ने कहा, फर्ज कीजिए कि कोई खूबसूरत, अक्लमंद, समझदार और बड़ी सखी औरत आपसे शादी करने के लिए राजी हो और शादी का पूरा खर्च वो खुद उठाए, तो क्या आप ऐसी शादी के लिए राजी होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है ऐसी औरत जो मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर नफीसा ने कहा, ये सोचने की बात उनकी है, आपकी नहीं, आप बस अपनी राय मुझे बता दीजिए। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस औरत का तारुफ जान सकता हूँ। नफीसा ने कहा, फर्ज कीजिए कि वो औरत खुवैलिद की बेटी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद हों, तो क्या आप राजी होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी, लेकिन इस मामले में मेरी आखिरी राय मेरे चचा अबू तालिब पर दारोमदार करती है। क्योंकि वो मेरे वली हैं, इसलिए इस बारे में उनसे मशवरा और बातचीत करनी होगी। नफीसा ने कहा, हाँ, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है और ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये आपका अपना मामला होने की वजह से शायद आपको अपने चचा से इस बारे में बात करने में थोड़ी झिझक हो सकती है। आपको इस मामले में तकलीफ में न डालते हुए ये जिम्मेदारी मैं खुद ले लेती हूँ। मैं आपके चचा से इस बारे में बात कर लूंगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ठीक है। फिर नफीसा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाकर पूरा वाकया सुनाई और सारी बातें तफसील से बयान की। वो ये सुनकर बेहद खुश हुई। फिर नफीसा ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से अबू तालिब के पास हाजिर होकर कहा, आपके भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हो सकती है क्या। इस बारे में अपनी राय जाहिर कीजिए। चाचा अबू तालिब अपने गरीब भतीजे की शादी के मामले में खुद ही बेचैन और कोशिश में थे, लेकिन खदीजा जैसी इतनी बड़ी रईस और समझदार औरत अपने गरीब भतीजे से शादी के लिए राजी होंगी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। अगर ऐसा हो जाए तो ये भतीजे मोहम्मद के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी, ये वो अच्छी तरह जानते थे। फिर भी चाचा अबू तालिब ने नफीसा के सामने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए ऐसा जवाब दिया, भतीजे मोहम्मद से बातचीत करके उनकी राय जाने बगैर मैं तो कोई आखिरी फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मेरी शख्सी राय ये है कि ये बहुत अच्छा पैगाम है। नफीसा ने कहा, उम्मीद है कि वो इस मामले में राजी होंगे, लेकिन आप उनसे मशवरा और बातचीत करके इस पैगाम को मंजूर करें तो उम्मीद है कि आप लड़के की तरफ से रिश्ता लड़की के वली के पास पेश करेंगे, क्योंकि दस्तूर ये है कि लड़के की तरफ से ही रिश्ता पेश किया जाता है। ये कहकर नफीसा उनसे रुखसत हो गईं। इसके बाद अबू तालिब ने खुशी खुशी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात करके पक्का फैसला कर लिया। फिर अबू तालिब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से अम्र इब्न असद और वराका इब्न नौफिल के पास हाजिर हुए और रिश्ता पेश किया। उन्होंने ये पैगाम सुनकर खुशी खुशी कबूल किया। अबू तालिब ने खुद ही खदीजा के वली उन दोनों हजरात के साथ निकाह की तमाम शर्तें और तारीख तय कर ली। इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। दुल्हा और दुल्हन की इस उम्र के बारे में अबू तालिब ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी तमाम खूबियों वाली खूबसूरत और सखी औरत दोबारा नहीं मिल सकती थी। इसलिए शादी के मामले में इस तरह की मामूली बात को अहमियत देना जरूरी नहीं था। ये बात दानिशमंद चाचा अबू तालिब अच्छी तरह जानते थे। निकाह की तारीख 10 रबीउल अव्वल तय हुई थी।
तय वक्त पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चाचा अबू तालिब, हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और कई इज़्ज़तदार लोग और रिश्तेदार, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से उनके चचा अम्र इब्न असद, वराका इब्न नौफिल और कुछ इज़्ज़तदार लोग और रिश्तेदार हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में हाजिर हुए और वहीं निकाह मुकम्मल करवा दिया। निकाह की महफिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और वली अबू तालिब खड़े होकर एक मुख्तसर तकरीर की। उन्होंने मौजूद लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, तमाम तारीफ़ें उस अजीम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की हैं जिसने हमें हमारे मुहतरम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा होने की सादत अता फरमाई और काबा घर की हिफाजत और निगरानी की सादत अता फरमाई और हमें इज्जत बख्शी। फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल और दौलत के एतबार से गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हर एतबार से वो बाकमाल नौजवान है। फिर अबू तालिब ने कहा, ये बात मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि अरब का हर शख्स मेरी बात की तायद करेगा और मेरी भांजी खदीजा बेहद खूबसूरत, काफ़ी समझदार और बेमिसाल हैं, और वो बहुत मालो दौलत की मालिक होने के बावजूद मेरे गरीब और निधन भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शौहर के तौर पर कबूल करने के लिए राजी हो गई हैं। इससे उनके बारीक इल्म और दानाई का सबूत मिलता है। उस अक्लमंद औरत की पहचान बयान करके हमने उनकी तारीफ ही की है। आखिर में मैं पूरे दिल से इस नए नवदंपति की शादीशुदा और ख़ानदानी ज़िंदगी में दायमी खुशी और सुकून की दुआ करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। चाचा अबू तालिब ने यूं तकरीर की। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से उनके मुंह बोले भाई वराका इब्न नौफिल खड़े हुए और मौजूद लोगों को मुखातिब करके उन्होंने भी एक तकरीर दी। उन्होंने कहा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने हमें पूरे अरब में बेहतरीन औलाद का मालिक बनाया। नस्ब और शराफत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कोई किसी से कम नहीं है। उन दोनों के पुरखे कई पुश्तें पीछे एक ही शख्स थे। आज फिर से दो खानदानों के बीच नया रिश्ता कायम हुआ। मेरा भी पक्का यकीन है कि इस निकाह को कबूल करके हम में से किसी ने भी गलती नहीं की, बल्कि दोनों पक्षों ने कामयाबी हासिल की है और फ़ायदा उठाया है। हमारे ख़ानदानी शराफत से हाशिमियों का नसबी मर्तबा कहीं बुलंद है। इसे कबूल करने में हमें कोई झिझक नहीं है। इस हिसाब से खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शौहर के तौर पर कबूल करके हमारी इज्जत बढ़ाई है, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने बेहद समझदारी का सबूत दिया है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म वाला, नेक किरदार और सच्चा नौजवान पूरे अरब में दूसरा कोई नहीं है। ये अरब का हर शख्स एक ज़बान से कबूल करेगा। उन्होंने आगे कहा, मौजूद बुजुर्गान और भाइयों, मैं आप सबके सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह के हाथ में खदीजा बिनते खुवैलिद को निकाह के जरिए सौंपता हूँ। मैं महान अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारा ये दुल्हा दुल्हन का चुनाव कामयाब हो और इस नव दंपति की जिंदगी कामयाब और खुशी सुकून से भरपूर हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस निकाह का नतीजा वाकई शीरीं और पुरसुकून रहा। शादीशुदा जिंदगी में उनके जैसा खुशहाल दंपति दुनिया में और कोई नहीं हुआ। निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चाचा अबू तालिब को इतनी बड़ी माली मदद दी थी कि उससे तिजारत करके उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी बड़ी खुशी और आराम से गुजारी। निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी तमाम दौलत अपने शौहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में सौंप और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मेरी इस दौलत के असली मालिक आप हैं। आप इस माल को अब जैसे चाहें इस्तेमाल और खर्च कर सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस दौलत की तरफ माइल नहीं थे। जिस मकसद को पूरा करने के लिए आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, दौलत उसमें रुकावट थी। इसलिए आपने अपनी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दौलत दोनों हाथों से गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस पर किसी तरह की नाराज़गी जाहिर नहीं की, बल्कि वो बेहद खुश हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख़ानदानी ज़िंदगी में कभी भी ज़रा सी भी नाइत्तेफ़ाक़ी या तकरार पैदा नहीं हुई। हमेशा की खुशी और बेपनाह सुकून में गुजरी उनकी घरेलू ज़िंदगी।
میرے پیارے دوستوں، یہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی داستان۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ پاک رب العالمین آپ سب کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔